संगम नमामि, जय संगम भीम नमामि नमोकार सर, सभी वेलकम सभी सर, साथियों वेलकम, को। संगम नमामि संगम नमामि सर। पधारे सर। आज संघ का समन संघ का आदेश हुआ है कि मैं आज का कंसेप्ट दे दूं, तो मैं बड़ी नम्रता से स्वीकार करता हूं। और मैं कंसेप्ट देने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा नाम नहीं होगा, इसलिए मैं निश्चिंत था। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि मुझे आज कंसेप्ट देना है, क्योंकि मुझे एक ऑल इंडिया रेडियो का 26 नवंबर का जो संविधान दिन का जो प्रोग्राम है मराठी में, उसका संविधान दिन का एक स्क्रिप्ट मिला है बनाने के लिए। तो उसकी तैयारी मैं कर रहा था। एक 20 मिनट का मराठी में महाराष्ट्र भर वो प्रोग्राम चलेगा 26 नवंबर को। तो मैं उसके संदर्भ में संविधान की, बाबा साहब की जितनी भी बातें हैं, किताबें हैं, मैं रेफर कर रहा था। और खासकर मैंने बाबा साहब का एक ऑडियो क्लिप सुना, 2-3 ऑडियो क्लिप सुने। लेकिन उसमें से जो सबसे पहला संविधान सभा का उनका 17 दिसंबर 1946 का जो क्लिप मैंने सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब मुझे कंसेप्ट दे रहे समन संघ का। क्योंकि वो क्लिप मैंने सुनी और बाद में मैंने बाकी के बाबा साहब के करीब 4-5 जो संबोधन हुए थे संविधान सभा में, जो 29 अगस्त को 1947 को हुआ था, 27 जनवरी 48 को हुआ था, 21 फरवरी 1948 को जो लेटर ड्राफ्ट में हुआ था, 4 नवंबर 1948 को हुआ था, और 17 अक्टूबर 1949 को एक हुआ था। तो उसमें से मैंने देखा कि ये सारे, और 25 नवंबर का, तो बाबा साहब की ये जो कंसेप्ट है यही हमने सुननी चाहिए। तो बाबा साहब का जो 17 दिसंबर 1946 का जो भाषण है संविधान सभा का, वो मैं पहले सुनाना चाहता हूँ। उसमें से जैसी बातें हम लोग करते हैं, आज करते हैं समन संघ का जो कंसेप्ट देते, बस वैसी ही बातें बाबा साहब सारे देश के लिए कर रहे हैं। और ये इसका मैं 11 मिनट का मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग गंभीरता से सुने कि बाबा साहब क्या कह रहे हैं। मैं आज So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I should have thought that in order to make a start, in order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. And it is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. And if I therefore, from this place, support Dr. Jaikar's amendment, it is because I want all of us to realize that whether we are right or wrong,
whether the position that we take is consonance with our legal rights, whether that accords with the statement of May 16th or December 16th. Leave all that aside. This is too big a question to be reduced to the position of mere legality. It is not a legal question. I say leave aside all these considerations and make some attempt whereby those who are not prepared to come will come. Let us make it possible for them to come. That is my appeal. In the course of the debate that took place, there were two questions which were raised and which struck me so well that I took the trouble of taking them down on a note paper. The one question was, it was asked, I think, by my friend, the Prime Minister of Bihar, who spoke yesterday in this assembly. He said, how can this resolution prevent the League from coming into the Constituent Assembly? Today, my friend Dr. Shyam Prasad Mukherjee asked another question. Is this resolution inconsistent with the Cabinet Mission's proposal? Now, sir, I think they were very important questions. And they, I think, ought to be answered. And answered categorically. I do maintain that this resolution, whether it is intended to bring about the result or not, whether it is the result of cold calculation or whether it is a mere matter of accident, is bound to have the result of keeping the Muslim League out. And I'll substantiate what I said. Sir, I invite your attention to paragraph 3 in the resolution, which I think is very significant and very important. Paragraph 3 envisages the future constitution of India. I do not know what is the intention of the mover of the resolution, but I take it that it is a sort of, after this resolution is passed, it will act as a sort of a directive to the Constituent Assembly to frame the Constitution in terms of paragraph 3 of the resolution. What does paragraph 3 speak of? Paragraph 3 says that in this country there shall be two different sets of polity. One at the bottom, the autonomous provinces or the states, or such other areas as care to join a united India. These autonomous units will have full powers. They will have also residuary powers. At the top and over the provincial units, there will be a union government having certain subjects for legislation, for execution and for administration. Sir, as I read this part of the resolution, I do not find any reference to the idea of grouping an intermediary structure between the union on the one hand and the provinces on the other. Now, reading this paragraph in the light of the Cabinet Mission's statement, or reading it even in the light of the resolution passed,
by the Congress at its Wardha session, I must confess that I am a great deal surprised at the absence of any reference to the idea of the grouping of the provinces. So far as I am personally concerned, I do not like the idea of grouping. I like a strong, united center, much stronger than the center we had created under the Government of India Act of 1935. But sir, these opinions, these wishes have no bearing on the situation at all. We have traveled a long road. The Congress party, for the reasons best known to itself, consented, if I may use the expression, to the dismantling of a strong center which had grown into this country as a result of 150 years of administration, and which I must say was to me a matter of great admiration and respect. But having given up that position, having said that we do not want a strong center, and having accepted that there must be or should be an intermediate polity, a sub-federation between the union government and the provinces, I like to know why there is no reference in paragraph 3 to the idea of grouping. I quite understand that the Congress party, the Muslim League, and His Majesty's government is not ad idem on the interpretation of that particular idea about grouping. But I always thought, and I will be prepared to stand corrected if it's shown that I am wrong, that at least it was agreed by the Congress party that is the provinces who are to be within the different groups consent to form a union or a sub-federation, the Congress would have no objection to that proposal. I believe I am correct in interpreting the mind of the Congress party. So the question that I ask is this: why did not the mover of this resolution make reference to the idea of having a union of the provinces or a group of provinces on the terms on which he and his party was prepared to accept? Why is the idea of union completely effaced from this resolution? I find no answer. धन्यवाद सर। सर, बाबा साहब का जो ये 17 दिसंबर 1946 का जो व्याख्यान है, इसका मैं सार आपको बताना चाहता हूँ। बाबा साहब जो बात 70-75 साल पहले बता रहे थे, आज वही समन संघ इस देश को, खासकर इस देश के समन संघियों को, यानी SC, ST और OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज को तहे दिल से बताना चाहता है। बाबा साहब अपने व्याख्यान में कहते हैं कि कांग्रेस ने उस वक्त जितने लोग संविधान सभा में चुन कर आए थे, उसमें से 292 लोग थे और उसमें से 75 लोग मुस्लिम लीग के थे और कुछ 175 के करीब कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस का कहना था कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रही है, इसलिए मुस्लिम लीग को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं करना है और उसको अलग रखना है। अगर वो जबरदस्ती करती है तो उसके खिलाफ युद्ध भी छेड़ना चाहिए। बाबा साहब उस वक्त कहते थे, कह रहे हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी और के साथ युद्ध की परिस्थिति पैदा करें। उल्टा बाबा साहब कहते हैं कि आप सभी का सम्मान करो और सबसे पहली अगर जरूरी बात क्या है तो इस देश को एक संघ बनाना है, यूनियन बनाना है, यूनिटी बनानी है। अगर आप लोग इस देश को यूनिटी और संघ बनाने की कोशिश नहीं करोगे
तो ये भूल जाओ कि जो कम संख्या में है वो लोग चुप बैठेंगे। एक ना एक दिन ये लोग भी शक्तिशाली बनेंगे और आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त क्या होगा कि इस देश के टुकड़े हो जाएंगे, हम देश में विभाजित हो जाएंगे। इसीलिए बाबा साहेब उस वक्त सारे देश को इकट्ठा आने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए, यूनियन बनाने के लिए अपील कर रहे थे। यही बात हम लोग 70-75 साल के बाद हमारे देश के कम से कम जो 85% लोग हैं उनको कहते हैं कि आज वैसी ही हालात बनी हुई है। बाबा साहब लिखते हैं कि जिन लोगों के हाथ में ये सरकार चली जाएगी, वो लोग अगर नीतिवान नहीं रहेंगे तो इस देश का वो क्या करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इस देश के वंचित घटक के लोग हैं उनके हाथ में क्या रहेगा, तो उनके हाथ में हक और अधिकार नहीं बचेंगे। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि इस देश को राष्ट्र बनाना है तो सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो ये देश को हम राष्ट्र करके खड़ा नहीं कर सकते हैं। ये संदेश बाबा साहब ने 17 दिसंबर 1946 में दिया था। बाद में भी बाबा साहब के कई व्याख्यान ऐसे हैं कि जो देश को इकट्ठा रखने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और लोगों को सार्वभौम बनाने के लिए, वो कहते हैं कि पीपल आर सॉवरेन, लोग सार्वभौम है। इस देश का जो पीपल है, इस देश का जो आम आदमी है, इस देश का जो समन है, वो सार्वभौम है, उसके हाथ में सारे अधिकार है। लेकिन जब तक उसको तुम अधिकार नहीं दोगे तो वंचित रहेगा। उसके मन में अगर ये बात पता चलेगी उसको, तो हो सकता है कि वो डेमोक्रेसी का जो मंदिर है, डेमोक्रेसी का जो हमने ढांचा खड़ा किया है, उसको वो तोड़ भी सकेगा। ऐसी हालात में आज हम लोग जी रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि बाबा साहब का कम से कम एक तो भी क्लिप आज के समन संघ के कंसेप्ट में सुना दूं। बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब ने आगे जाके सारे व्याख्यानों में इस देश को सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की बात कही है। रिपब्लिक का अर्थ होता है कि जिस इंसान में, चाहे वो गरीब तबके का क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर काबिलियत है तो इस देश का मुखिया बन सकता है। लेकिन उसको आपको आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, उसको उसकी जगह देनी पड़ेगी। अगर वो सीलवान है, नीतिवान है, और वो अगर होशियार है और देश के चलाने की उसकी काबिलियत है, तो उसको उसकी बागडोर संभालने का मौका देना चाहिए। लेकिन पिछले 70 साल में ये ऐसा क्यों हुआ कि जो बाबा साहब ने अपेक्षा की थी, बाबा साहब ने जो सोचा था, उन्होंने जो इस देश के बारे में सपना संजोया था, देखा था, उसका क्या हुआ? फिर बाबा साहब कहते हैं कि ये ऐसा ही होगा अगर आप लोग यूनिटी के रूप में, यूनियन के रूप में इस देश में नहीं जुड़ेंगे। ये बात बाबा साहब सारे देश को कह रहे थे। लेकिन आज ये बात हम समन संघियों को, जो जन्म से समन संघी है, SC ST OBC है, उनको सबसे ज्यादा लागू होती है। क्योंकि पिछले 70 साल में बाबा साहब ने जो बताया था उसके ऊपर जो सत्ता में आए हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उल्टा बाबा साहब ने जो सिस्टम खड़ा किया था उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की। इसीलिए बाबा साहब ने जो कहा है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और सोशल जस्टिस जो देना था आम आदमी को, वो नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग आज खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है। हम लोग जिसका संविधान का, जिसको बेनिफिट मिलना था और बेनिफिट ईमानदारी से देना चाहिए था, उन लोगों को बेनिफिट नहीं देने की वजह से हम समन संघी लोग आज खतरे में हैं। इसीलिए बाबा साहब ने जैसा उस व्याख्यान में कहा और बाकी के 4-5 व्याख्यानों में संविधान सभा में कहा कि इसके लिए आपको अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करने के लिए आप अकेला संघर्ष नहीं कर सकते। वो बात के व्याख्यान में कहते हैं कि एक अकेला इंसान अगर किसी सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, विरोध करने के लिए खड़ा होता है, तो ये एक इंसान रेवोल्यूशन या क्रांति नहीं कर सकता। उसको झुंड में आना चाहिए, उसको इकट्ठा आना चाहिए। और जब तक सारे लोग इकट्ठा आकर अपने अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक ये व्यवस्था जो है, कठोरवादी व्यवस्था है, जो फीडल लॉर्ड्स है, जमींदारी की व्यवस्था है, भांडवलदारों की व्यवस्था है, ये आपकी बात नहीं मानेगी। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान सभाओं में जितने भी व्याख्यान दिए हैं, उन व्याख्यानों का निचोड़ यही है कि आप लोगों को, जो वंचित घटक है, जिनको न्याय नहीं मिला, उन लोगों को इकट्ठा आना जरूरी है। यही बात हम लोग पिछले 18 महीने से आम लोगों को कह रहे हैं
नेताओं को कह रहे, सामाजिक संगठनों को कह रहे, शासकीय कर्मचारियों के, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, प्रोफेसर के, हर तबके के इंसानों को हम बड़े तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे, शांतता से कह रहे, लेकिन कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। अगर ये बात हम लोग अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो बाबा साहब ने फिर 25 नवंबर 1949 का जो व्याख्यान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो संविधान है वो संविधान वर्केबल है, इलास्टिक है और ये हर स्थिति में कायम रख सकता है। इस देश के अंतिम इंसान को भी न्याय देने के लिए वो काबिलियत रखता है, लेकिन ये संविधान को बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर इस संविधान के डॉक्यूमेंट को, जिसको कि यूनाइटेड नेशन में बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड का है, इसको अगर हम नहीं संभाल पाएंगे तो हम लोग नहीं संभलेंगे, हमारा भविष्य उसका बहुत खतरे में हो सकता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत मार झेलनी पड़ती है। यही चीज है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभाओं में बार बार कह रहे थे, इसी को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए हमको इकट्ठा आना पड़ेगा, क्योंकि अकेला इंसान कितना भी सजग हो, कितना भी ताकतवर हो, वो सिस्टम के साथ नहीं लड़ सकता। उसको झुंड में आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और अपने जीतने के लिए इकट्ठा होकर ही जो चाहे संघर्ष करना पड़ेगा। यही बात हमको वी द पीपल समन संघ के इस प्लेटफॉर्म से सारे लोगों को हम लोग हर दिन रात कहते हैं। इसी के ऊपर जो है हम गहराई से अगर सोचते हैं तो ही हम जीत जाने वाले हैं, अन्यथा हमारा भविष्य अंधकार में है और आने वाली पीढ़ियों का जो सुख हम देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल ही लोगों को सुख देना है, उनके जीवन में खुशहाली बहाल करना, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए हम जुड़ने का प्रयत्न करेंगे और जोड़ते रहेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तभी हम लोग जीत पाएंगे। धन्यवाद। संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।